اور متحدہ عرب امارات کے صدر پاکستان کا ایک روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور یو اے ای کے صدر کے درمیان ملاقات بھی ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک تھے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، نمائندہ خصوصی عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان صاحب، کتنی اہمیت کا حامل یہ دورہ تھا برادر اسلامی ملک کے سربراہ کا؟ دیکھیے، پاک امارات تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس دورے کو شیخ محمد بن زاید ال نہیان، جو کہ آج دوپہر کو نور خان ایئر بس پہنچے تھے، جہاں پر وزیر اعظم نے، آرمی چیف اور ڈپٹی وزیر اعظم سمیت کابینہ ارکان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا، اور اہم مصروفیات رہی ان کی۔ وزیر اعظم سے الگ ملاقات ہوئی، اسی طرح فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور ان ملاقاتوں کے بعد اب باضابطہ طور پر سرکاری طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو یو اے ای کے صدر ہیں وہ باضابطہ طور پر اب اسلام آباد سے روانہ ہو گئے ہیں۔ نور خان ایئر بیس سے ان کی روانگی ہوئی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ رحیم یار خان میں ان کا اگلا پڑاؤ ہوگا، اور اسلام آباد اور پنڈی کا جو سرکاری دورہ تھا وہ مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد اب وہ پنڈی اسلام آباد سے روانہ ہو گئے ہیں اور اگلی منزل کی جانب وہ پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ایک اہم دورہ تھا جس کے بارے میں بہت سی تیاریاں کی گئیں۔ اسلام آباد اور راول پنڈی کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، بہت ہی پرجوش قسم کا ماحول ہم دیکھ رہے تھے کہ جب یہاں پر پہنچے ہیں معزز مہمان تو ان کو JF-17 کے طیاروں کی طرف سے جو ہے وہ کارڈ آف آنر پیش کیا گیا، سلامی دی گئی۔ تو سرکاری سطح پر انتہائی اہمیت کا حامل دن تھا۔ یہاں پر اسلام آباد میں مقامی طور پر چھٹی بھی دی گئی تھی۔ تمام جو اسکول کالجز تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری دفاتر تھے ان کو بند رکھنے کے احکامات دیے تھے، اور یہی وجہ تھا کہ معزز مہمان کو VVIP پروٹوکال دینا ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، اور یہ تمام تر مناظر جو کہ ہمارے ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ خصوصی پروٹوکال ان کو دیا گیا، اور اہم ملاقاتیں ہوئیں، اہم مشاورتیں ہوئیں، جس میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں شراکت داری کو وسعت دینے کے حوالے سے جو ہے وہ لائحہ عمل طے کیا گیا ہے۔ تو یہ اہم دورہ تھا، اور اب علاقائی عالمی صورتحال پر بات چیت کے بعد معزز مہمان جو ہیں وہ یہاں سے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ یہاں سے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نمائندہ خصوصی عثمان خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ تو متحدہ عرب امارات کے صدر کا پاکستان کا ایک روزہ سرکاری دورہ مکمل ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور یو اے ای کے صدر کے درمیان ملاقات بھی ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک تھے۔ پاکستان اور یو اے ای میں برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعاون کے جاری منصوبوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر اور IT تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ عوامی روابط اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں شراکت داری کو وسعت دینے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم اور صدر یو اے ای کا علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی تعلقات مضبوط بنیادوں پر قائم۔ برادر اسلامی ملک چین اور امریکہ کے بعد تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران دونوں ممالک نے اربوں ڈالر کے معاہدے کیے۔ پاکستان اہم خلیجی ملک کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں مزید وسعت لانے کا خواہاں ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے برادرانہ تعلقات نصف صدی سے زائد عرصہ سے قائم۔ 1971 میں یو اے ای کے معرض وجود میں آتے ہی دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات استوار ہو گئے۔ مرحوم شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کے دور میں دو طرفہ تعلقات تیزی سے پھلے پھولے۔ مضبوط سفارتی اور اقتصادی روابط اعتماد، احترام اور عملی تعاون پر مبنی رہے ہیں۔ مئی 2024 میں وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تو صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے پاکستان میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یو اے ای اس سال پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری کرنے والے ملکوں میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اس طرح کی ونڈو آف اپرچونٹی آپ کو بار بار نہیں ملتی۔ ٹریڈ کی بہت پوٹینشیل ہے ابھی مزید اور بڑھانے کا۔ ابھی بھی کتنی زیادہ ٹریڈ ہے، لیکن یہ 10 سے 20 بلین ڈالرز بھی ہو سکتی ہے۔ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس اور بڑھائیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اور تعاون بڑھائیں، ڈیفنس میں اور بڑھائیں، تاکہ پھر یہ جو تعلقات ہیں دیرپا ہو جائیں۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم 18 لاکھ سے زائد پاکستانی دو طرفہ تعلقات کی ایک مضبوط کڑی ہیں۔ یو اے ای پاکستان کے لیے زر مبادلہ کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2024 میں یو اے ای سے 6.7 ارب ڈالرز کی ترسیلات پاکستان بھیجی گئیں۔ 19 اماراتی کمپنیاں پاکستان میں بینکنگ، IT، ریئل اسٹیٹ، توانائی اور مواصلات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یو اے ای کے صدر کے دورے پاکستان کا خیر مقدم، کہا اہل پنجاب کی طرف سے معزز مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات لازوال اور بے مثال ہیں۔
यूएई के सदर का पहला सरकारी दौरा बाइस फख्र है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। और अभी आपको बताएं कि बरतानवी सरजमीन से कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई और पुरतशद्दुद धमकियां, पाकिस्तान का बरतानिया से एहतजाज। दफ्तर खारजा ने बरतानवी डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को ज़बानी डीमार्श किया है। मजीद जान लेते हैं, समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, तफसीलन आगाह कीजिएगा पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज बहुत एक अहम खबर सामने आई है देखने में। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से बरतानवी हुकूमत को ये एहतजाजी मरासला भेजा गया है। गो कि वो तहरीरी नहीं है मगर डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के हवाले से देखा जाए तो उनके हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा बुलाकर उनसे ज़बानी ये एहतजाज किया गया है, जिसको वर्बली डिमार्श भी कहा जाता है। इस डिमार्श के बाद कुछ वक्त तक एक रिस्पॉन्स का जाएगा और बरतानवी हुकूमत की, क्योंकि हाई कमिश्नर जेन मैरियट पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, वो हॉलीडेज़ के सिलसिले में अपने मुल्क वापस गई हैं, तो हेड ऑफ मिशन जिनको चार्जेड अफेयर्स भी कहा जाता है उनको बुलाकर ये एहतजाजी मरासले के हवाले से बातचीत की गई है। अब अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता बरतानवी हुकूमत की जानिब से तो आगे भी डिप्लोमेटिक तमाम तर प्रोटोकॉल्स को देखते हुए मजीद इकदाम लिए जाएंगे पाकिस्तान की जानिब से। मगर ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि बरतानिया पाकिस्तान के उन ममालिक में शामिल होता है लिस्ट में जिनके साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे मरासिम हैं और उसके अंदर दिफाई ताउन जो है वो सरे फहरिस्त है। इसके अलावा पाकिस्तान में डेवलपमेंट सेक्टर में भी बरतानिया की बहुत इन्वेस्टमेंट है और ये दो तरफा ताउन बहुत अच्छे से चलता है। तो ये डिमार्च का सिलसिला तभी सामने आया है जब ब्रेडफोर्ड में बरतानिया में पाकिस्तानी काउंसलेट के बाहर एक खातून ने इश्तियाल अंगेज तकरीर की, एक हेट स्पीच की और उस हेट स्पीच में बहुत वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल के कत्ल के हवाले से बात की, जिसके हवाले से पाकिस्तान ने अपने खदशात का और गहरी तशवीश का इजहार किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका सुमेरा। बरतानवी सरजमीन से कौमी इदारों के खिलाफ फर्जा सराई और पुरतशद्दुद धमकियां, पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार, यूके से मुलव्वस अफराद की शनाख्त और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इंतहाई इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी, मुजाहिरीन की बरतानवी सरजमीन पर कौमी इदारों के खिलाफ फर्जा सराई, इश्तियाल अंगेजी और बराह रास्त दहशतगर्दी पर उकसाने के मुतरादिफ। वाक़या बैनुल अक़वामी क़वानीन, जिम्मेदार रियासती तर्ज अमल के लिए बरतानिया के अज़्म का इम्तिहान है। बरतानिया में पीटीआई और बैरूनी आकाओं के गठजोड़ ने बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तहान पैदा कर दिया। पीटीआई ने मज़मूम सियासी मकासद के लिए तमाम हदूद को फिनांगते हुए पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को आगे बढ़ाया। पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक इंतहाई इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी की गई, जिसमें मुजाहिरीन को बरतानवी सरजमीन पर कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करते देखा जा सकता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक बरतानिया में इस नौयत की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पीटीआई के भगोड़े यूट्यूबर्स और शर पसंद अनासिर बरतानवी सरजमीन को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया ट्रोल्स ने भी इस वीडियो को भरपूर अंदाज में फैलाया। सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत रुकन मुमालिक पर इश्तियाल अंगेजी रोकने की जिम्मेदारी आयद होती है। बरतानवी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट भी इश्तियाल अंगेजी की हौसला अफजाई को संगीन जुर्म करार देता है। मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने बरतानवी सरजमीन के गलत इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए बरतानिया से मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा जिम्मेदार रियासती तर्ज अमल के लिए बरतानिया के अज़्म का वाज़ेह इम्तहान करार दिया जा रहा है। आपको बताएं कि मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुजरिम करार। अदालत ने 15 बरस कैद की सज़ा सुना दी। अदालती फैसले के मुताबिक मुजरिम ने अपनी ताकतवर हैसियत और वसी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। साबिक मलेशियन वज़ीर आज़म पर करप्शन के 4 और मनी लॉन्ड्रिंग के 21 मुकदमा दर्ज हैं। नजीब रज़ाक अगस्त 2022 में जेल में कैद है। खबर शामिल करें, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का काफिला लाहौर पहुंच गया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, रास्ते में हमारे काफिले को मुतअद्दिद जगहों पर रोका गया, हमारे कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। ये जमहूरी हुकूमत नहीं है। मंडी बहाउद्दीन के वर्कर्स हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा था, वहाँ की रोडें बंद की गई थी, वहाँ के कारकुनों को उठाया गया। हमारे जो वहाँ से फॉर्म 45 के MPs हैं, MNAs हैं, उनको भी हरासा किया गया, उनके लिए भी रास्ते बंद किए गए। और अभी जो हैं हमारी लाहौर में एंट्री हुई है कि यहाँ पर हमारे साथ जो गाड़ियाँ थी उनको इधर इंटरचेंज पर रोक दिया गया। जमहूरी हुकूमत इस तरह नहीं करती। इनके इन हरकतों से दो सूबों के दरमियान जो नफरतें बढ़ रही हैं।
पंजाब हुकूमत की वज़ीर आला KP को दौरे के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। सुहेल आफरीदी 28 दिसंबर तक सूबे में रहेंगे। पंजाब असम्बली में दाखिले की इजाज़त भी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सुहेल आफरीदी और वफ्द को दाखिले की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला के साथ उनकी काबीना के अरकान और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट भी होंगे। सुहेल आफरीदी अपोजिशन अरकान से मुलाकात और खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला KP को लाहौर आने पर खुशामदीद कहते हैं। ये पाकिस्तान का यूरोप देखने लाहौर आए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वीडियो बयान। कहा, ये सियासी या मालूमाती तफरीह करें, उनको मुकम्मल इजाज़त होगी। बदज़बानी, फसाद करने या इंतशार की इजाज़त नहीं होगी। खुशामदीद कहते हैं KP के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब को। बत्तियाँ देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें, पंजाब की और लाहौर की तरक्की खूबसूरती देखकर उससे इम्प्रेस होकर जाकर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। और मुझे पता चला है कि चीफ मिनिस्टर को आफरीदी साहब को उनकी कैबिनेट ने कहा कि जी बहुत पेशावर गंदा बहुत है, बहुत जो है वो पे हालात ख़राब हैं, तो चले जो है वो यूरोप देखने लाहौर चलते हैं। ये सियासी सरगर्मी करें, ये तफरीही सरगर्मी करें, और जो मालूमाती ट्रिप पे ये यहाँ आए हैं वो अच्छी चीज़ है, लेकिन फसाद करने की, इंतशार करने की और बदज़बानी करने की इजाज़त नहीं होगी। वो यकीनन वो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। सो बिहेव करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सीख के खुशी खुशी वीकेंड गुजार के घर को जाएंगे। अगर बदतमीज़ी करेंगे तो फिर आपको पता है कि हाँ जी। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। वज़ीर आला लाहौर में सड़कों पर मटर गश्त कर रहे हैं। अवाम ने सुहेल आफरीदी को घूमने के लिए नहीं, खिदमत का मैंडेट दिया है। अमीर मकाम की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला कुछ शर्म करें, अपने सूबे का रुख करें। कि आपको चीफ मिनिस्टर वही लाहौर की गली कूचियों में घूमने के लिए नहीं कर दिया है। KP की आवाम ने इतना ज़रूर दे के सीखे मरियम नवाज से, वही पंजाब में घूमे फिरे और देखे कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने क्या किया है, वही नकल कॉपी करो। ज़रा शर्म आया करो, आ जाए उससे स्टार्ट ले, उससे शुरू करें। बकाया आपको कुछ ही नहीं मिलना है। पंजाब हुकूमत ने बसंत पर 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसें और रिक्शे फ्री चलाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 3 रोज़ के लिए बसें और रिक्शे फ्री चलाए जाएंगे ताकि मोटरसाइकिल कम से कम इस्तेमाल हो। 30 दिसंबर से डोर और पतंगों से मुताल्लिक़ मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दे रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने 5 जनवरी तक सब कमेटी बनाकर प्लान पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। खबर शामिल करें, फैसलाबाद की निजी सोसाइटी में एक हफ्ते के दौरान एक और गाड़ी ने बच्चे को कुचल दिया। 3 साल का बच्चा जाबाहक हो गया। हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। क्या तफसीलात हैं, यूसुफ चीमा से जानेंगे। यूसुफ, बताइए ये हालात इतने क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? देखें, ये मदीना टाउन का इलाका है और एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में बच्चे जो है वो घरों के बाहर खेल रहे होते हैं और इस तरह से एक गाड़ी जो है CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि वन वे से आती हुई जो है वो दाखिल हुई है गली में, जहाँ पर वालिद के सामने 3 साल बच्ची जो है वो खेल रही थी और वालिद के चीखों पुकार के बावजूद गाड़ी ने जो है उसको कुचल डाला, जिसके बाद बच्ची को जो अस्पताल लेके जाया गया, मगर बच्ची जो वो जहाँ पर नहीं हो सकी है। इस सारे मामले पे पुलिस जो है वो मौका पर पहुंच गई है। मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपका।